اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی کالیں سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ ہماری ایک دشمن ہے جو مسلسل 8 سال سے ہمیں جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے صبر کیا، برداشت کیا، مگر وہ باز نہیں آ رہا۔ یہ شخص نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور بد کردار ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہے، ان کی عزتیں خراب کرتا ہے اور کئی لوگوں کو پریشان کر چکا ہے۔ یہ ایک عامل نہیں لیکن عامل اس کے دوست ہیں اور وہ ان کے پاس جا کر جادو کرواتا ہے۔ اجازت کے ساتھ ایسا عمل بتائیں جس کو جادو جنات والے لوگ بھی کر سکیں، بغیر عکس کا عمل ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اس طرح کے بہت سارے کیس آ رہے ہیں، بہت سارے عمل میں نے بتائے ہیں۔ آپ مجھے پرسنل میں واٹس ایپ میں اس کا نام، اس کی امی کا نام اور اس کی کوئی بھی تصویر ہو، پرانی ہو یا تازہ ہو، آپ مجھے سینڈ کریں تاکہ ادھر میں چیک آؤٹ کر لوں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد کرے گا کسی کا واسطہ ہم سے پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تو اس سے جان چھوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ غلطی کی معذرت۔ حضرت یہ رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی شخص چلے میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ اعتکاف میں رمضان المبارک والے اعتکاف کی طرح ہوتا ہے یا کچھ رعایت ہوتی ہے چلے یا زکوٰۃ والے اعتکاف میں؟ اچھا، اس میں غلطی کی کوئی بات نہیں، آپ میرے سب قابل احترام ہیں، اور جو میرے خاص طور پر اسٹوڈنٹ ہیں تو میں اپنے بچوں کی طرح ان کو محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جو رمضان مبارک کا اعتکاف ہے اور جو میرا چلکشی کا اعتکاف ہے، دوسرے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے وہ ذرا سخت ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے اندر صرف رابطہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ خط لکھتے ہیں اور اپنے اس کمرے سے باہر رکھ دیتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم وہ آتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں آپ کو پراپر بتاتا ہوں جب آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں یا جب میں جس کو کراتا ہوں تو وہ ساری چیزیں اس کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا کوئی شاگرد اس چلے میں بیٹھا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائم آپ نے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنی ہے، تو اس کے گھر والے اس ٹائم آئے ہوتے ہیں۔ وہ ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ ایک کاغذ کے اوپر خط کے اندر حال و احوال لکھا جاتا ہے اور پھر وہ جو خط ہے وہ ٹوکری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ گھر والے آتے ہیں اس کو اٹھا کے پھر اس کا جواب خط کے ذریعے دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس کے اندر مجبوری کے تحت میں موبائل استعمال کراتا ہوں تو اس کے اندر وائس کے آپشن پہ آپ میسج نہیں کر سکتے، صرف آپ جو میسج لکھنے کا آپشن ہوتا ہے اس پہ لکھ کے گھر والوں کو سینڈ کر دیتے ہیں، اس کا جواب بھی آگے سے وہ اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، عبداللہ ثوابی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ خان سنگ چل دے، خیر دے، طبیعت خدے، وڑ مڑ خدے، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے، اللہ سلامت رکھے، یہ بچہ ہے۔ السلام علیکم حضرت، نیو جگہ نیو ڈریس اچھے لگ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاید میں آپ کو اچھا لگ رہا ہوں گا لیکن مجھے اس طرح کا ڈریس پسند نہیں ہے، یہ صرف مجبوری کی تحت جب میں نیند سے اٹھتا ہوں ویڈیو فوراً بنانی ہوتی ہے، کافی دن گزر کے ہوتے ہیں، مطلب مجبوری کے تحت میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں تو میں اس طرح کی ویڈیو بنا دیتا ہوں، ورنہ میں الحمدللہ اپنی شلوار قمیض کے اندر ہی ویڈیو بناتا ہوں، ٹی شرٹ کے اندر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ استاد جی ایک عرض ہے، اگر آپ کسی کو بھی ایک اچھا معالج بننے کی فیس یعنی ہدیہ ویڈیو میں بتا دیں اور اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہو تو میرے جیسے نادان آپ کو پرسنل میں میسج کر کے تنگ نہیں کریں گے، بلکہ اپنا جائزہ خود لے لیں گے کہ ہم اس کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، شاگرد بن سکتے ہیں یا نہیں۔ بالکل آپ کا مشورہ عمل اچھا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے کہ آپ میرا احساس کر رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ میرے پاس آئے اس کو میں گائیڈ کر دوں۔ مثال کے طور پر
अब चिल्ला कशी के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे आते हैं कि वो इश्क मशूकी की वजह से आते हैं। अब वो बिगड़े और शहजादे होते हैं, तो उनको मैं समझा देता हूँ, मेरे उसके अंदर कोई पैसे नहीं होते। जो मैं आप लोगों से कॉल पे बात करता हूँ, गाइड करता हूँ या कोई मशवरा देता हूँ, उसकी मेरी कोई फीस नहीं, वो फीस सबिलिल्लाह है। और हर किसी के लिए, चाहे वो मेरा सज्जन है, दुश्मन है, कोई भी है, अलगरज कोई भी उसके अंदर आ सकता है, तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ। नंबर 2 पर, ये आपको किसने कह दिया कि आप उस काबिल नहीं होते? आप कोई भी इंसान है, इंसान से बड़ी ताकत कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि बुनियाद बनानी पड़ती है। और जो असातिज़े कराम होते हैं, बाज़-औक़ात वो छोड़ देते हैं, बाज़-औक़ात उस पर तवज्जो दे के उसको कामयाब करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करता हूँ, मेरे शागिर्द कामयाब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को और आपके बुजुर्गों को अच्छी सेहत वाली खुशियाँ नसीब फरमाए, खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए, और आखिरत में आपको और आपके बुजुर्गों को आला से आला रुतबा अता फरमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आप सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। शाहजी सैयद हो के बंदों को लूट रहे हैं, मेरा फीस का पैसा आपने लिया है, ना आपने मुझे अमल करवाया है, ना पैसा वापस किया है, ना कॉल उठा रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं दे रहे। अगर आपने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। क़यामत वाले दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे हाजिर होंगे? मैं आपकी शिकायत ज़रूर लगाऊंगा, फिर आपको याद आएगा कि मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। पहली बात तो ये है कि मेरी इस्लाह करने के लिए शुक्रिया। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जो भी अमल कराता हूँ, अमल के पैसे नहीं लेता, मैं टाइम के पैसे लेता हूँ। अच्छा मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपको बताता चलूँ, ये नौजवान मेरे पास आया, मैंने इसको गाइड किया, इसने मुझे फीस सेंड की, मैंने इसको अमल बताया, इसकी तजवीज़ सही की। और मज़े की बात ये है, ये ऐसे जज्बाती है। और दूसरे नंबर पर आप मुझे क्या समझते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या मुझे सींग लगे हुए हैं, या आप फिर मुझे बुद्धू समझते हैं? क्या समझते हैं आप मुझे? मैंने इस बंदे को, इस नौजवान, इस बच्चे को रात को तकरीबन 12 बजे से लेकर 2, ढाई, 3 बजे तक मेरे ख्याल में हमारी बातें होती रही। अब इस टाइम मैंने इसको गाइड किया, सारी चीज़ें इसकी तजवीज़ सेट की, सारी चीज़ें इसको लवाजमात बताए, इसको कपड़ों का कहा, इसने कपड़ों का बंदोबस्त किया, छुरी का बंदोबस्त किया, मतलब जो जो चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो दूसरे दिन ये साहब ने कहा कि मेरी इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। और जब मैंने अपने मामला चेकआउट किए तो ये साहिब घर पर थे। ठीक है, ये आप बुद्धू किसी और को बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह जिसका नाम उसकी पिक आती है ना, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया हुआ है कि हम मामला देख लेते हैं। और दूसरे नंबर पर आप क्या समझते हैं कि मैं जो फीस लेता हूँ, मैं उसको ऐसे ले लेता हूँ, इस्तेमाल कर लेता हूँ? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, क्योंकि जो मैं कमाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पार्टनर है, और वो मैं पाबंदी के साथ देता हूँ। तो इस वजह से आपके पैसे मेरे पास जमानत हैं। जब आपका दिल करे आप अमल सीखने के लिए आए, कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले चांद से आ जाए, तो मैं उसका पाबंद हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। असल आपने किया क्या है, इस तरह के बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि उस्ताद जी को हम मतलब चूना लगाएंगे, इससे सीखेंगे, और तादाद पूछ लेंगे, सारी चीज़ें पूछने के बाद हम कहेंगे उस्ताद जी हम नहीं करते। वो अमल आप खुद करते हैं, फिर आप रजत के शिकार होते हैं। ठीक है, आपके पैसे बिल्कुल मेरे पास हैं, बल्कि आधे पैसे अभी रहते भी हैं। आप दूसरे पैसों का बंदोबस्त भी बचे करो, और दूसरे नंबर पर आप मेरे पास दोबारा आओ, मैं आपकी इज्जत फिर भी करता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे फीस ली हुई है। आप एक नादान है तो मैं नादान नहीं हूँ, मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अक्ल दिया है। और वैसे आप भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, और आपके अंदर गुफ्तगू करने का अंदाज आपका अच्छा है, आप इस्लामी टच अच्छे दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने मैसेज लिखा, क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे, तो क़यामत वाले दिन तो मुंह आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आपने मेरा टाइम भी वो किया लिया जिसके मैं पैसे लेता हूँ, तो उसके बदले मैंने आपको हर चीज़ गाइड की, तो आप आगे से एक्टिंग शुरू कर दी, तो हिसाब तो आपको बचे देना पड़ेगा। क़यामत मेरे लिए नहीं है, सबके लिए होगी, आपके लिए भी है, आपके खानदान वालों के लिए है, मेरे लिए भी है। और दूसरे नंबर पर किसी को जब बात करते हैं उसके खानदान से नहीं देखा जाता, उसके खानदान को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अल्लाह आपको हिदायत दे। बहरहाल मैं आपका वेट करूंगा, 1 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद है, मैं जरूर आपको अमल करा दूंगा। ठीक है, फीस मैंने जो ली है मैंने अपने टाइम की ली है, और बाकी आधी फीस मेरी आपके पास रहती भी है, ज़हन में रखिएगा, ये मैं आपसे लूंगा इंशाअल्लाह ताला। उस्ताद जी आपके बामुअक्कल वाले चिल्ले बहुत खतरनाक हैं,
परहेज का मसला इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक कमरे में बंद होना बहुत हौलनाक है। आप लोगों को सलाम है जो इतनी मुश्किल में चिल्लाकशी करते हो। या आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जब इंसान को खास किस्म का कीड़ा होता है ना, तो फिर उसको डर नहीं होता। सही है, फिर आदमी कहता है बस या मैं या तू या आर या पा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब आदमी ठान लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका भरम रखता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आदमी की मजबूरी बन जाते हैं तो तब आदमी उसके अंदर घुस जाता है। और ये सिस्टम था, मैंने अपने बड़ों के साथ कुछ यूं समझ लेके जंग की हुई थी, तो मैंने इस वजह से फिर इस तरह के चीले किए भी सही, अल्लाह ने मुझे कामयाब भी किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने शागिर्दों को उससे मना करके वो चीजें करवाता हूँ जिसके अंदर नुकसान नहीं होता, टाइम कम लगता है और अच्छे मुआलिज बन जाते हैं। तो मैं अपने शागिर्दों को वो कराता हूँ, वो नहीं कराता जिसके अंदर उलझन ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, वो मैं अमल नहीं कराता। अल्लाह पाक आपका सफर आसान करे और कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हजरत हमने जमीन ली है, वो जल्दी फरोख्त हो जाए, आपके साथ इजाजत के साथ वो हो जाए। आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें और इसके साथ 713 मरतबा या अल्लाह या बासितो या कवीजो, या अल्लाह या बासितो या कवीजो पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ क्या करें, जब आपकी जमीन बिक जाए उसमें से कम अज कम 5%, 5% नहीं तो 2.5% आप गरीबों के अंदर तकसीम करेंगे। ये वादा कर लें, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने से पहले आपकी जमीन सेल आउट हो जाएगी। ये हम रोजाना करने किसी भी टाइम कर सकते हैं। शर्त यह है कम अज कम 2 से 2.5% आप अल्लाह को देंगे, अल्लाह की मखलूक को देंगे। नहीं देंगे तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर पैसे लगवा देते हैं। ये अमल जो मैंने आपको बताया है इसका सदका समझ लें। शाह जी, क्या एक बेमुवक्कल सूरत का आमिल किसी मरीज के अंदर जिन्नात को निकाल कर अपने पास रख सकता है, फिर उन्हीं लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे जादू निकालने के लिए या फिर ऐसे जायज कामों के लिए? बिल्कुल कर सकता है, और बेमुवक्कल वाला आमिल इसके अंदर कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मसला यह है कि उसका उस्ताद मजबूत होना चाहिए, पता हो पीछे उसके बैठा है और उसको पता हो कि मैंने क्या किया हुआ है। ऐसा ना हो फिर जहाज बन जाए, फिर तबीयत खराब होगी। सैर परी के अमलियात का वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सर वीजे का कोई वजीफा बता दें। आप पर्सल में आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा कि आपको कहाँ का वीजा चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या मामलात करने हैं। इंशाअल्लाह ताला जरूर आपको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।